Hello everyone, welcome to another episode of Podcast with Maria. Today we have an amazing guest with us. She is from Delhi, India. She is an educationist. Without wasting time, let's welcome our guest. Hello Shivali, how are you? Good evening, Maria. Salam. Namaste. I'm absolutely fine. How about you? I am good. Thank you so much for your precious time. First of Thank you so all, please introduce yourself for all viewers. Okay. So, good evening, everybody. All our viewers from Pakistan, India, and whoever's watching us. I am Shivali. I live in a place called Noida, which is in Delhi, is NCR. Okay, it's on Delhi border. It's a very new city and it's in the limelight now because the new international airport is also coming up here, which is going to be the largest in Asia. So I'm proud to be associated with this city. And yes, as far as professionally I'm concerned, I'm an educationist. I've been associated with education from a very long time. And apart from that, I have my interest in holistic healings also. Thank you so much for your wonderful introduction. First of all, please tell us what inspired you to become an educator. Well, I'm coming from a background where both my Nana ji as well as my mother, they were associated with education, and I think I owe it to my mother. She was the principal of a school, though she did not work after marriage. After marriage, she decided to devote herself, like how women do it, to her home children. But I can proudly say that today, the inspiration behind me getting into education as a woman, as a human being, is I owe it to her. Today, she is no more with us. She passed away last year in the month of November. But I will always remember her because she has been my mentor in pushing me into this field. I never had confidence, Maria. As a child, I was not very confident. Even today, I feel shy in certain things. But she used to always encourage me and she pushed me into this field. And that's how I started as a school teacher. But later on, I went into training and coaching. Thank you so much. Now, please, can you share a memorable moment of your teaching career that had a positive impact on you, Shivali? Can you share? Yes, there are many such milestones, I would say, in my career because I've been working for a very long time now. And so, if you were to ask me to pinpoint a single moment, I would sum it up like this, that there have been several times when I have been associated with people who are coming from, backgrounds where it's not just about English, speaking up for themselves, financially not very good condition, absolutely raw people. And I distinctly remember one of my trainees, and today I can proudly say she's working with a very big five-star hotel in India. But when she came to me, she could barely speak. But she had only one ambition and one focus. मुझे कुछ बनना है, वो यही कहती रह गई मुझे, मैम मुझे कुछ बनना है, आप मेरी हेल्प करिए और देखिए मैं क्या कर सकती हूँ. So she took my guidance and along with other people also, I'm sure. And today she's a very successful girl. She's a professional. वो recognize नहीं कर पाती हूँ मैं उसको, उसमें इतना change मैं देखती हूँ. A simple girl from a small town who could barely speak today is a successful professional. तो ऐसे कई moments हैं मेरे training में, मेरे education में, when people have come back to me and said, "Ma'am, thank you so much." So I'm very grateful to God. I'm able to, touch people's life in such a way. That's a great thing. The Rehan vision is also like that we had a positive impact on others. Yes. Now, please tell You're me talking. what subjects do you love the most while teaching and why? See, if you ask as a subject,
communication. My expertise is in that. So if you talk about a single language, then it's English. But if you talk about a subject, I'm also into life coaching. So I am guiding people in a lot of things, in a lot of aspects of their life. So you can call me a kind of a person. This is what would I call myself? A transformational coach. I'm guiding others. So my field of study or my field of working or interest would be human beings at large. So I personally, if you ask me subject, then English as a language, but humanity as a subject, where I feel that anyone who comes to me and I can help that person, even 1%, I'm doing what I'm supposed to do. That's outstanding. It's very nice to talk with you at this time. Thank you so Now, much. yeah. How do you celebrate achievement of your students in the class? In the class, I think one of the best ways of celebrating achievements of our people whom we guide and they become successful is to, give them that positive applause, to kind of introduce them to others, to set them as an example for others, to encourage them to come forward and, and kind of, publicly acknowledging them. That's very important. Sometimes some of these successful people, they don't want to acknowledge their presence. Like Rehan Bhai tells us now that if you have some talent, why don't you come forward? पर हम सब में हिम्मत नहीं होती है. So ऐसे लोग जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको अगर हम एक बार फॉरवर्ड लेकर आए, ब्रिंग देम फॉरवर्ड, सेटिंग देम एज एन एग्जांपल in front of people, that really does the thing. That encourages not only that person, that encourages others also. It becomes a source of encouragement for others also. So I think this is one of the best ways I have been doing it, to acknowledge, to recognize, and to say, wow, you have done it. Not taking the credit, not taking the credit. No, we are just guiding. That's the way I do it. मेरा अंदाजा ठीक था आपके बारे में। सर रेहान ने रिकमेंड किया। टैलेंटेड इंसान तो ये हो ही नहीं सकता ना कि टैलेंट ना हो। आपका अंदर का विजन तो सेम हमारे वाला है कि मतलब दूसरों को इंट्रोड्यूस कराना और ये कोचिंग दूसरों को सिखाना। अब प्लीज आप जी. शेयर करें कोई फेवरेट टीचिंग टेक्निक दैट यू ऑफन यूज फॉर एजुकेशन और फॉर एवरीथिंग। I feel one of the best ways is doing a drama, role play. I love to act, sing, and dance. So, what I do is sometimes I give situations and I say, act it out. Because everyone likes to act. And today, with smartphones and smart technology, सेल्फीज लेने का सभी को शौक है, वीडियोस बनाने का सभी को शौक है, सोशल मीडिया पे आने का सभी को शौक है. सो आई थिंक वी कैन यूटिलाइज दिस, where I mean, Rehan school is doing this, Rehan Bhai school is doing this, where you see all the students coming online, doing interviews, coming face to face with people right across the globe. So I like to put them in situational drama. मैं ड्रामा करवाती हूँ, रोल प्लेस करवाती हूँ, so they feel free to act and speak. And that encourages them to not only speak, but to be more confident. You are connected with the showbiz industry or you No, I'm very much down to earth person. नहीं आपने कहा Today ना आपको social शौक media, है तो मैंने कहा शायद आपने थोड़ा कोई ज्वाइन किया हो या कोई मैंने ऑडिशन किया दिया हुआ हो है. आपने मैंने किसी को। स्कूल में और मैंने कॉलेज में, मैंने स्टेज के ऊपर काफी परफॉर्मेंसेस दिए हुए हैं. प्लेज में एक्ट किया हुआ है, ड्रामेटिक्स में मैंने बहुत पार्टिसिपेशन की है. आई लव टू एक्ट माई सेल्फ. सो मैंने स्टेज में काफी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ये कह सकते हैं. Now please tell me how do you encourage shy students, especially shy person in the class, to participate more actively in class discussions or anything else? See, firstly, Maria, we have to understand that when a person is shy, there could be different reasons for it. But before you kind of encourage that person, you have to win that person's heart. उसके दिल को जीतना बहुत
ज़रूरी है। उसके करेज को जीतना बहुत ज़रूरी है। आई मीन दैट पर्सन शुड टॉक टू यू वेरी फ्रीली फर्स्ट, तभी आप उसके साथ एनकरेजमेंट का कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो माई वे ऑफ डूइंग इट इज दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन विद अ लॉट ऑफ कंपैशन, encouragement, getting to know that person first, not कि आज चलो you do this, you do that. No, 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 no. That is not the way. The way is to, touch that person's heart in such a way to win the confidence of the person. Once you have got the confidence of that person will start, following your guidelines, gets encouraged. So once you have crossed that threshold, that person could be shy or having some fear. If you can help that person to first, transcend that, to overcome that, then it becomes very easy to make that person speak. क्योंकि बोलते सभी हैं, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, लेकिन अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है तो उसकी कई वजह होती है। मे बी दैट पर्सन इज स्कैर्ड, मे बी दैट पर्सन, लाइक आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं छोटी थी, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती थी क्योंकि घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था। फादर मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे, बस जितना काम करना बोला जाए बस उतना ही करो, ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी मुझे। मैं बहुत फेयर में रहती थी, लेकिन मदर थी, इनकरेज करती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ ये बना। आई डू द सेम थिंग, आई ट्राई टू विन द पर्सन's हार्ट। Once I won, I've got the confidence, that person I know will follow my guidelines. So that's my way. ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी बच्चा अगर शाय होता है उसके पीछे बहुत रीज़न होती है, और अगर आप बाकी दिल जीत लें ना तो मुझे लगता है उसको सिखाना, मोटिवेट करना वैसे ही आसान हो जाता है। करेक्ट, एकदम बहुत बिल्कुल। इजी हो जाए। जी, जी। चाइल्डहुड से मैं खुद एक शाय बच्चा थी और कैमरे को फेस करना मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी करूँगी। आपकी वाली बात, हमारी ग्रूमिंग, जो चाइल्डहुड ग्रूमिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। यस, इट मैटर्स अ लॉट। कभी और कोई कोई टीचर बच्चे, मिल जाता है लाइफ में जो इनकरेज करता है, कभी कोई फ्रेंड मिल जाता है लाइफ में जो इनकरेज करता है। जैसे मैं नहीं आती थी सोशल मीडिया पे, मैं कहाँ थी सोशल मीडिया पे, रेहान भाई ने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आओ। वी नो दिस ना, हम सबके पीछे वो बैठे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। encouraging us. मैंने, आपको पता है, मैं खुद इस फील्ड में सिर्फ सर रेहान की वजह से आई हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑनलाइन फील्ड में आऊंगी और ऐसे बैठ के बात कर रही Yes, we होंगी। are all connecting because of him. Yes, we are all connecting because of him. So we should be very grateful to him and to God, for आज जो मैं आपसे बात, जैसे मेरा पाकिस्तान आने का बहुत मन है, लेकिन मैं फिजिकली अभी वहां नहीं आ सकती, पर जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ तो लगता है वही हूँ। It's like that feeling. So yes. Now, please tell me, how do you keep yourself updated in the field of research and education with latest trends? I think I come from a generation where we never had the internet. So the moment internet came, I said, wow, अब तो I can travel the whole world. I love to read, Maria. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. I love to read. I love to research. And everything is available online. अब तो सब कुछ अवेलेबल है. It's at the tips of a finger. And Google is watching us. Google हमें watch कर रहा है through AI. क्योंकि मैं कुछ भी रिसर्च करती हूँ तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में और आने लग जाती है. ऑटोमेटिकली वो रिसर्च इंजन्स ऑन रहते हैं गूगल में. सो आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. उसको उसको मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है. तो मैं अपने आप को अपडेटेड इस तरह रहती हूँ कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है आज, और कुछ नहीं तो मेरे पास एक स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन आपके पीछे पड़ा रहता है आपको अपडेट्स देने के लिए. So it's become very easy now for me. I love to go online and I read a lot. I watch a lot. मुझे शौक है इन चीज़ों का. And I encourage the new generation, because new generation एक particular section है जो सिर्फ डांस और म्यूजिक में जा रहे हैं. ये सिर्फ डांस और म्यूजिक के लिए नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स. इट इज़ फॉर नॉलेज, फॉर अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना. So that is what I like to do. That's how I keep myself updated. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और अब की जनरेशन मैं कहूँगी कि बहुत लकी है, क्योंकि उन्हें टीनेज में ही सोशल मीडिया की अवेयरनेस मिली, ये चीज़ें मिली। अब जो बच्चे हैं 12 टू 14 ईयर्स, उनकी बिल्कुल ग्रोइंग माइंड है, फ्रेश माइंड, हमसे जल्दी चीज़ें पिक करते हैं और उनको इतनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म मिला है।
सबसे अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये ट्रेंड हम कभी सोच भी नहीं सकते थे इंडिया पाकिस्तान ऐसे बैठ के हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। ये तो मतलब एक वो क्या कहते हैं, सबसे करिश्मा है, मिरेकल, हाँ जी। टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। इट्स लाइक अ मिरेकल, बिल्कुल ये ऐसी बात है। हम एब्सोल्युटली कभी सोच अमेरिका। बिल्कुल हम सोच ही नहीं सकते थे कभी। वो मुझे पहले लगा कि आप शायद पाकिस्तान से हैं, जब सर ने रिकमेंड किया ना तो फिर जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मैंने कहा इंडिया से हैं। फिर तो मैंने कहा चले बात करके और मजा आएगा, थोड़ा जानेंगे नहीं कल्चर के मारिया, बारे में और सारा चीजें। you can keep in और touch बहुत with me even after this interview. You can be in touch with me. I'd love to be in touch with you. थैंक यू सो मच। और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे फील ही नहीं हो रहा मैं फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। आपकी अपनी नेचर बहुत फ्रेंडली है Thank और you. आपसे बात करके बहुत मजा आया। वो थोड़ा सा आइडिया मुझे आपकी नेचर का मैसेज से भी हो गया था, तो मैंने कहा जब तक डायरेक्ट बात नहीं होती फिर हमारी जरा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने स्पेशल टाइम निकाला है। और आप कितने अरसे से हैं इस फील्ड में, एजुकेशन में कितना टाइम हो गया, अब आपके पास मुझे कितना काफी साल हो एक्सपीरियंस है गए। ये इट्स लाइफ लाइक कोचिंग 15 का? ईयर्स हो गए। मुझे 15 साल हो गए इस माशाल्लाह। चीज को करते हुए। मैं 2006 में एक्चुअली, जो मेरे मास्टर ट्रेनर हैं, मेरे खुद के मास्टर ट्रेनर हैं, उनकी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। इज नोन एज अ ग्रैंड मास्टर अवधूत दास। आपके पाकिस्तान के कई लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कराची, इस्लामाबाद से हैं, जिनको मैं अपने खुद के मास्टर ट्रेनर के थ्रू मिली हूँ। तो ही हिज नेम इज अवधूत दास। आप उनको प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। कहते हैं ना, आपकी लाइफ में टीचर आ जाता है जब आप रेडी होते हो। व्हेन यू आर रेडी द टीचर अपियर्स। सो 2006 में मेरे लाइफ में चेंज आता है। और जहां मैं सिर्फ एक स्कूल टीचिंग में पढ़ी हुई थी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यू कैन डू इट, यू हैव द पावर टू डू थिंग्स। तो मेरी सोचने का तरीका भी बदला। आई केम फॉरवर्ड, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। सो माइंड पावर की ट्रेनिंग उन्हीं से मैंने ली है। एंड आप देखिए, कुछ साल बाद फिर रेहान अल्लाहवाला आते हैं, जिनके बारे में मैं मतलब यूट्यूब पे देखती तो थी थोड़ा बहुत, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ कनेक्ट कर सकूंगी। सो ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस मी, रादर ही स्टिल मोटिवेटिंग मी। सो इस तरह मैं मतलब मेरा कनेक्शन है कि मुझे इनकरेज किया गया और फिर मैं आई और फिर मैंने एक्सप्लोर किया। मुझे लगता है शायद इंटरनेट ड्रॉप हो गया, पता नहीं हाँ, किस तरफ से हुआ, लेकिन हाँ जी। जी आप बता रही थी, फिर आए सर आने वाला, आगे जरा हाँ, कंटिन्यू बस वो कीजिए। मेरे जो ग्रैंड मास्टर हैं अब्दुल दास, उन्होंने मुझे मतलब मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं ना, आप दूसरों की मदद करने से पहले आपको खुद की पहले मदद करनी है। सो बिल्कुल। मिस्टर अब्दुल दास जो मेरे ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने मुझे लाइफ स्किल्स की और इन सब की ट्रेनिंग भी दी, एनकरेजमेंट किया। और क्लेयरवॉयंस की ट्रेनिंग दी उन्होंने मुझे, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया। और फिर कुछ साल बाद मैं रेहान अलावा जी से कनेक्ट हुई, तो उनकी वजह से भी मतलब कि इस फील्ड में फिर मैं आगे निकल गई। सर रेहान से आप कब कनेक्ट हुई फर्स्ट टाइम मतलब? मैं एक्चुअली देखो तो उनकी जो यूट्यूब पे तो काफी टाइम से हैं, जी। काफी सालों से। वो मैं आई थिंक इट वाज मतलब आप 2000। पर्सनली? अच्छा। मैं उनको कभी मिली नहीं हूँ मारिया, बट ओके नहीं। हाँ, 2012 में मैंने उनका सबसे पहले वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जहाँ वो कुछ बता रहे थे। तब उनका मतलब कि कॉन्सेप्ट जो था वो समझ में आया। आज वो पूरी चीज दिख रही है मुझे। मुझे 12 साल में वो पूरी चीज दिख गई। पर उन्होंने जी। इसकी शुरुआत बहुत पहले की थी। हाँ जी, उन बिल्कुल दिनों ऐसे में ही है। मैं उनके वीडियोस देखती थी। हाँ जी, तब वो तो बैक मुझे स्टेज थे बिल्कुल, अब ज़रा बहुत नेटवर्क फैल गया है उनका। जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था मैं इनके साथ अगर कनेक्ट कर सकूं, मैं शायद कभी इनसे बात कर सकूं। लेकिन आप देखो, ये कनेक्शन मेरा रियल कनेक्शन हुआ 22-23 में। 12 साल बाद मेरा उनके साथ, 10 साल बाद मैं उनके साथ एक्चुअली में कनेक्ट कर पाई। पर वो कहते हैं अगर आपने कुछ सोच लिया तो वो होकर रहता है। बिल्कुल, और ये ये सही है। बात है। और आप इसके अलावा दूसरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं एजुकेशनल, उनके साथ कोलैबोरेशन वगैरह भी करती हैं? एज़ अ कोलैबोरेशन करती हूँ, बिज़नेस या? मैं अपने लेवल पे करती हूँ। मुझे जो लोग जानते हैं इतने सालों से, वो मुझे अप्रोच करते हैं। सो फ्रीलांसिंग भी हो जाती है इसी बहाने। और वैसे भी मेरी नेचर है मारिया की लाइफ को थोड़ा और अंदाज से देखने की आदत है मुझे। तो मुझे लगता है कि
कहीं भी मुझे अगर मौका मिलता है किसी के साथ कोलैबोरेशन का, आई एम विलिंग टू डू इट। आई एम विलिंग, थोड़ी शाय हूँ, तो सोचती हूँ, लेकिन करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी कोलैबोरेशन करना चाहता है तो मेरे साथ फॉरवर्ड आके अगर बात करता है, तो मैंने किया है, मैं अभी भी करती हूँ। और आप ऐसे ऑनलाइन भी लेक्चर्स वगैरह देती हैं, मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड या लाइफ कोचिंग ऑनलाइन या है, ऑनलाइन कुछ भी? ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती हैं, ऑनलाइन देती जी। हूँ। बट वही है कि वीकडेज में नहीं हो पाता, वो फिर वीकेंड्स पे रह जाता है मेरा। और जब भी टाइम मिलता है, जैसे आज मैं डिटरमाइंड थी, 2 दिन से आपसे बात हो रही थी, मैं कहा कोई बात नहीं, मारिया को आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, जी। आज से इंशाल्लाह देखो हो गया आज। हाँ जी, बिल्कुल। आपको वहाँ वीकेंड में 2 डेज़ की ऑफ होती है कि सिर्फ संडे ऑफ होता है? मेरा सिर्फ वीकेंड क्या होता है, फ्राइडे तक तो नॉर्मल चलता है, बस वो वीकेंड ऑफ की इससे ज्यादा ये होती है कि फिर जो और सारे काम पूरे वीक में नहीं होते, फिर वीकेंड पे वो करती हूँ, ये होता है। जी। और आप मतलब हर एज ग्रुप के बच्चों को मतलब सिखाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड या नॉलेज, यस, कि कोई आई कैन। स्पेसिफिक बहुत एज है? छोटे बच्चों के साथ नहीं, बहुत छोटे बच्चों के साथ नहीं, बट मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल्स, सिर्फ बच्चों को नहीं है, प्रोफेशनल्स आते हैं, प्रोफेशनल्स को भी के साथ भी मेरा है, और मेच्योर लोग आते हैं, अडल्ट्स हैं। जी। और एजुकेशनल टूर करती हैं फॉरेन कंट्रीज में और नहीं इधर-उधर नहीं, ऐसा सिटीज़ में कुछ नहीं? नहीं है, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है, अभी तो इंडिया में ही हूँ। बस वही है, जी। इंडिया में ही वक्त नहीं निकलता। देखो आप मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कई ऐसे लोग ही है, नाराज हो जाते हैं रूटीन कभी बिज़ी कभी। जी। वो टाइम नहीं मिलता नहीं, मुझे। नहीं मुझे उम्मीद थी, मैं कहा आज नहीं 4 दिन बाद मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बिज़ी रूटीन है आपकी तो, किसी नहीं नहीं, मैंने टाइम और सोचा वाक़ई बहुत। आज मिल गया। जी। हाँ जी। और बाय चांस आज ऐसा हुआ मैं ऑनलाइन आई हूँ, आप ही 1 मिनट बाद ही आपका मुझे मैसेज आ गया मैसेंजर पे ना? क्योंकि मैं वेट कर रही थी, मैं वेट कर रही थी, अच्छा। मैंने कहा ऑनलाइन है, मारिया इज ऑनलाइन, लेट मी वो कनेक्ट विद पता यू। क्या हुआ, आज सडनली किसी सर का मुझे इंटरव्यू के लिए आ गया कॉल, और मैंने तो सोचा भी नहीं था, और आना मैंने आपके लिए था, वो फिर बस उनसे बात हुई पहले, इस वजह से मैं अच्छा। ऑनलाइन थी। जी। हाँ वो तो भी बस सर ठीक है, यहाँ के ना टीम मेंबर हैं। जी जी। हाँ जी। जी। हाँ करो, अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। जी, उनसे उनसे किया था, आपसे पहले कर चुकी हूँ उनसे ना, उन्होंने मेरा किया था भैया। जी। हाँ, वो मैं फेसबुक पे अपडेट्स देख रही थी, आई वाज वाचिंग। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मुझे लगता है कितना टाइम अभी के लिए काफ़ी होगा, आप में भी ऐसे ही अपने आगे विश बाकी मारिया। काम देखने हैं। जी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट में रहिएगा। थैंक यू मारिया, थैंक यू आवर व्यूअर्स, एंड थैंक यू सब गॉड देखने टू वालों का कनेक्ट विद शुक्रिया। इसी के यू। साथ यस। हम इजाज़त चाहते हैं। हमारा टाइम खत्म होने को आ रहा है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, बाय।